Good evening, everyone. So today is 21st of August 2026, and today we have our PhD scholar Kamal Kumar, who will be telling us regarding the Vastu Shastra and astrology in relation to that astrology. Yes, Kamal, over to you. Thank you, ma'am. Welcome, everyone. Good evening. So, welcome to final session of Vastu Shastra. Let me introduce myself. I am Kamal Kumar from Delhi. I have done numerology and chronology in 2023. I am associated with Vedic Science Research Organization, VISRO, from 2024 and have done few courses from them such as numerology, crystals, basics, and advanced Vastu, nakshatras, medical astrology, and Brigunandinadi. Currently, I am pursuing PhD in Astrovastu from VISRO. A brief about Vedic Science Research Organization. Today's session is presented under the guidance of Professor Krishnakant Sir, founder and chairman of Vedic Science Research Organization, VISRO, a platform that was founded with single powerful mission to decode ancient Indian wisdom through the lens of modern science. When people hear the word Vedic, they often think of old rituals or myths. But at Visro, they treat Vedic knowledge as a profound, sophisticated data science. Whether it is spatial energy like Vastu, cosmic timing like astrology, their team of researchers and experts study how these ancient laws of nature can be practically applied today. Their goal at Visro is to give logical, research backed tools to optimize your mindset, your health, your home, and your career. From founding chairman Professor Krishnakant sir to all senior members, all are extremely supportive, friendly, and helpful. As their motto is, we just don't teach astrology, we make astrologers. So, we have studied in first session about origin and introduction of Vastu Shastra, history of Vastu Shastra, five elements and its directions, cycle of creation and destruction, and energy flow. In second session, we have studied about eight directions, which is also called Ashtadikpals, and its eight subzones. Vastu Guild, 45 Devtas, their attributes, and Marma points. In this final session, we will study about how to mark Brahmasthan, that is center of the house, then 32 entrances of the house, introduction to Astrovastu, case study examples, and common problems and their solutions. So let's start with the session. First, how to find Brahmasthan in the floor map. जैसा कि अभी आपको ये सामने एक फ्लोर मैप दिख रहा है, जनरली हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम ब्रह्मस्थान किसी भी फ्लोर का कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप फ्लोर मैप के ऊपर एक सिंपल स्क्वायर बना के या राउंड बना के इसके ऊपर इस तरह से प्लस बना के देन एक क्रॉस बनाने के बाद जहां भी ये सारी लाइंस कनेक्ट होती हैं वो आपका ब्रह्मस्थान निकलेगा। ये चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कैसा भी प्लॉट हो, इसमें आपका ब्रह्मस्थान ऑलमोस्ट 99% एग्जैक्ट निकलेगा, जो हम इस तरह से निकालते हैं। तो ये हम अपने घर के फ्लोर मैप पे इजीली ट्राई कर सकते हैं, जिससे हम जो भी हमने पीछे स्टडी करी है, जो भी डायरेक्शंस पढ़ी हैं, उसके एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि हमारे फ्लोर मैप में हमारे घर में कौन सी डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो अब चलते हैं आगे 32 एंट्रेंस पे। 32 एंट्रेंस जो हमें मिलती है वो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वास्तु मंडला के बारे में, उसके अंदर जो हम 9 बाय 9 का ग्रिड बनाते हैं उसका जो आउटर वॉल है, उस आउटर वॉल पे हमें 32 एंट्रेंसेस मिलती हैं। जैसा कि 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर एक डायरेक्शन में हमें 8 एंट्रेंस मिलती हैं, जो टोटल करके 32 आती हैं। So, according to Vastu Shastra,
The main entrance of a house is not merely a doorway. It is considered the primary channel through which energies enter the home. Each of 32 entrance zone carries a distinct vibrations and influence that can affect health, prosperity, relationships, peace, success, and overall life experiences. Entrance act as connection between inner space and outer space, that is outer world. Various energy fields develop in a building. These energy fields affect and governs lives of occupants who resides there. In all, there are total 45 energy fields within an enclosed space known as Vastu Purush Mandala. Out of these 45 energy fields, the 35 energy fields or Devta fields are located on the outer periphery of enclosed space. As a result, we get 32 entrance effect when door is located on these 32 Devta fields. How 32 entrances measures? As we have studied about Vastu Purush Mandala in previous session, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने जो लास्ट सेशन में वास्तु पुरुष मंडला का ग्रेडिंग किया था, उसके अंदर 9 बाय 9 का जो हम बॉक्स बनाते हैं जिसका 81 कैलकुलेट करके आता है, उसका जो भी आउटर हम साइड्स लेते हैं उसमें 32 पार्ट्स निकल के आते हैं, जैसे कि हमने ये ग्रिड बनाया था। तो इसके जो हर डायरेक्शन में जो टॉप मोस्ट पार्ट्स होंगे, जैसे कि सबसे ऊपर का आउटर पार्ट है, उसको हम 32 एंट्रेंस में काउंट करेंगे। जैसे कि ये आता है ईस्ट से अगर हम लें तो E1 टू E8 आता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड साउथ ईस्ट, जिसका एनर्जी फील्ड्स आती हैं शिखी, पर्जन्या, जयंता, इंद्रा, सूर्य, सत्या, वृषा एंड अंतरिक्षा। देन फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ये S1 से S8 आता है, जिसको हम कहते हैं वायु, उषा, विटाथा, बृहस्पति, यमा, गंधर्व, भृंगराज एंड मृगा। देन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट W1 से लेके W8 तक आता है, जो वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। जो हम स्टार्ट करते हैं पितृ, देन द्वारिका, सुग्रीव, देन कुसुमदंता जिसको हम पुष्पदंता भी कहते हैं, देन वरुणा, असुरा, शेषा एंड पापयक्ष्मा। इसके बाद हम आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, जो नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट पे आता है N1 से लेके N8 तक। इसमें हमारे पास जो एनर्जी फील्ड्स आते हैं वो आते हैं रोगा, नागा, मुखिया, भल्लाट, सोमा, सॉरी, भुजंगा, अदिति एंड दिति। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा आउटर फील्ड आता है और इस हिसाब से हम जो है एनर्जी फील्ड इसमें डालते हैं। सो पहले हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के तरफ से, जो आता है E1 पे, क्योंकि जो भी हम ग्रेडिंग करते हैं E1 हम हमेशा हमारा नॉर्थ ईस्ट से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट आए या डायगोनल प्लॉट हो तो भी। उसमें हमारा ये नहीं है कि कॉर्नर में ही आएगा, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे भी होगा वहीं से हम E1 स्टार्ट करेंगे। सो पहला जो एनर्जी फील्ड आता है वो आता है शिखी, जिसका एट्रीब्यूट है इंजुरी और फियर फ्रॉम फायर। सो ये एक नेगेटिव एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस पे अगर किसी का डोर है तो हम उसको ये एडवाइस करते हैं कि इसको या तो बंद कर सकते हैं तो बेटर है, अदरवाइज इसको ट्रीट किया जाए, बिकॉज दिस एंट्रेंस इज अ नेगेटिव, इट कॉजेज मॉनेटरी लॉसेस एंड एक्सीडेंट्स। इसके बाद हम आते हैं सेकंड E2, जिसका नाम है पर्जन्या, जिसके जो बर्थ ऑफ डॉटर्स के लिए जाना जाता है एनर्जी फील्ड। दिस एंट्रेंस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस एंड मोर गर्ल्स आर बोर्न इन द हाउस विद दिस एंट्रेंस। थर्ड वन इज जयंता, जो E3 आता है, जिसका हम विक्ट्री से भी डिनोट करते हैं। इट इज एट्रीब्यूट इज गेन ऑफ इमेंस वेल्थ। इट इज वेरी पॉजिटिव एंट्रेंस एंड गिव्स मनी, प्रॉफिट एंड सक्सेस। किसी भी नेटिव की अगर एंट्रेंस E3 है तो
वो एक बहुत ही बेस्ट मानी जाती है इन सब 32 फील्ड्स में। देन हमारे पास आती है E4, जो है इंदिरा। इसको अथॉरिटी भी कहते हैं। ये फ्रेंडशिप और हायर सुपीरियर जो होते हैं या जो एक अच्छे बड़े लेवल पे होते हैं, उनके सपोर्ट के लिए मानी जाती है। बीइंग अ पॉजिटिव एंट्रेंस इन ईच डायरेक्शन, दिस एंट्रेंस अट्रैक्ट्स बेनिफिशियल गेन्स फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल। सो ये भी एक बहुत अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके घर की एंट्रेंस ईस्ट डायरेक्शन है और E3 और E4 के अंदर आ रही है तो वो बेस्ट है। इसके बाद आती है E5, सूर्या, जो सन को डिनोट करती है। जिस हिसाब से सन की जो एनर्जी है, सन बहुत हॉट रहता है, गर्म रहता है, उसी तरह ये एंगर को डिनोट करती है। ये एंट्रेंस जो जिस किसी की भी होगी, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि वहाँ जो भी नेटिव होगा वो मोस्टली एग्रेसिव ही होगा, उनके घर में एग्रेशन काफ़ी हद तक रहेगी। सो ये एंट्रेंस पॉजिटिव नहीं मानी जाती, ये एंट्रेंस एडवाइस नहीं की जाती किसी को भी। देन वी हैव E6, जो सत्या एनर्जी फील्ड है, और इसको ट्रुथ के साथ जो है डिनोट किया जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग भी इस एंट्रेंस में रहते हैं, जिनके भी घर में ये एंट्रेंस होती है, उस घर के लोग जो है अपनी कमिटमेंट में कभी पूरे नहीं रहते। वो कमिटमेंट जरूर कर देंगे बट उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस एंट्रेंस को भी हम नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव उसमें लेंगे। देन वी हैव E7, विच इज विच इज वृषा। ये इसको हम क्रुएल्टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस जो है जो भी उस हाउस में रहता है उनको इनसेंसिटिव बना देती है दूसरे के लिए। सो ये एनर्जी फील्ड भी, या ये एनर्जी E7 जो हमारी एंट्रेंस है, ये भी हमारी नेगेटिव में आती है। इसके बाद हम आते हैं E8 पे, जिसको हम अंतरिक्षा कहते हैं। ये एंट्रेंस जो है चोरी होने का, लॉस होने का डर मन में बिठा के रखती है। जो भी जिस किसी की नेटिव की इस एंट्रेंस पे होगी एंट्रेंस, उसको हमेशा एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉस या चोरी का, इस तरह का डर हमेशा लगा रहेगा। तो ये एंट्रेंस भी हम पॉजिटिविटी में नहीं लेंगे, इसको भी नेगेटिव माना जाएगा, ये किसी को एडवाइजेबल नहीं है। इसके बाद हम आते हैं साउथ डायरेक्शन में, जिसमें सबसे पहले आती है वायु, जिसको विंड डायरेक्शन हम कह सकते हैं। ये डिनोट करती है कि घर में बॉय या मेल चाइल्ड की जो काउंटिंग है वो कम रहती है। ये एंट्रेंस नेगेटिव इफेक्ट करती है मेल चाइल्ड पे। और पॉसिबल, काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि जो मेल चाइल्ड घर का होगा वो अ, उसकी कंपनी जो है, जैसे हम कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स या इलीगल काम हो गए, उन चीज़ों में ज़्यादा उसका माइंड जो है जाना शुरू हो जाएगा, जो कि घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो ये एंट्री भी हम नेगेटिव में लेते हैं। देन वी हैव S2, विच इज़ पूषा, जिसको हम नरिशमेंट कहते हैं। ये एंट्रेंस जो है उन लोगों के लिए बेटर है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जिनको रेगुलर प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलती रहती है। अदरवाइज अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नॉर्मली देखें तो ये एंट्रेंस एडवाइस नहीं की जाती। देन वी हैव S3, विच इज़ विताठा, जो ट्रेडिशनल, अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो ये एक तरह से लो स्टेटस को दिखाती है कि क्या कहते हैं, people living with S3 entrance earn money in their life with their name and goodwill. This entrance gives money and success. बट अगर इसको अगर हम पॉजिटिविटी में देखें तो ये ज़्यादा पॉजिटिव में हम इसको नहीं लेते। इसके बाद आती है S4, विच इज़ ब्रैक्सता। इसका जो मतलब इसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो ये होता है, जो भी रेजिडेंट्स घर में रहते हैं वो ओवर ईटिंग का उनको ज़्यादा दिल करता है करने का। जैसे कि फूड घर में बना रहे हैं तो बन जाएगा, खाएंगे नहीं, वेस्टेज रहेगी। बट ये है कि ये एंट्रेंस, जिनको फेम चाहिए या जो एक्टर हैं या मीडिया जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, उनके लिए ये एंट्रेंस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिखावा ज़्यादा पसंद करती है। इसके बाद आती है S5, विच इज़ यमा, जो डेथ को डिनोट करती है। इसको हम एंगर से भी जोड़ते हैं। सो ये एंट्रेंस जो है लॉसेस, लोन्स, डेब्ट, कर्जा, ये सारा देती है। तो ये एंट्रेंस हम एडवाइस नहीं करते, ये नेगेटिव है।
इसके बाद आता है S6 विच इज गंधर्व, जिसको एक तरह से इनग्रेटिट्यूड कहा जाता है। ये एंट्रेंस पॉवर्टी दे सकती है, और क्योंकि एक तरह से डिस्पोजल का डायरेक्शन होता है इस एंट्रेंस पे, तो जो भी हम एफर्ट्स करते हैं वो रिजल्ट नहीं दे पाता, वो हमेशा डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो ये एंट्रेंस भी हम नेगेटिव में लेते हैं। इस तरह S7 आता है भृंगराज, जिसको पॉवर्टी से डिनोट किया जाता है। यहाँ भी हम कितना भी एफर्ट कर लें वो कभी भी रिजल्ट नहीं दे पाता, वो हमेशा वेस्टेज में जाता है। तो ये एंट्रेंस भी हम नेगेटिव में लेते हैं। देन वी हैव S8 मृगा, loss of sons. This entrance make residents lonely, isolated. It disconnect them from the rest of the world. कई बार हमने देखा है कि कोई कोई घर में ऐसा होता है कि लोग किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। सुबह अपना ऑफिस निकले, वापस आए, अपना मस्त रहे, किसी से कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जिस नेटिव की डायरेक्शन ये होगी वहाँ ऐसा देखा गया है। तो ये डायरेक्शन भी जो है नेगेटिव मानी जाती है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद हम आते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। W1 आता है पितृ, जो हमारे एंसेस्टर्स की डायरेक्शन है। ये जो घर के बेटे हैं या सन जिसे हम कहते हैं, उनको सफरिंग देती है, फाइनेंशियल कंडीशन पुअर करती है, और लाइफ स्पैन पे इसका काफ़ी हद तक असर रहता है। तो ये एंट्रेंस भी हम नेगेटिव में लेते हैं। देन वी हैव W2 विच इज़ द्वारका, जिसे एक तरह से गेट कीपर कहा जाता है। बट ये एंट्रेंस हमें इंक्रीज ऑफ एनिमीज दे सकती है। दिस एंट्रेंस कॉज इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ इनहेबिटेंट, रिजल्टिंग इन रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दिस एंट्रेंस ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनस्टेबल कैरियर। जब हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम किसी भी के साथ भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे, चाहे हमारा ऑफिस है, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी है। तो ये एंट्रेंस अगर होगी तो हमारे माइंड में हमेशा ये आता रहेगा कि सामने वाला हमारा कोई फायदा उठाना चाहता है, चाहे वो बिना किसी फायदे के सिर्फ हमारे फायदे के लिए ही काम कर रहा हो, बट हम उसका कभी भी इस चीज़ का रिगार्ड नहीं करते। सो ये डायरेक्शन भी नेगेटिव में आती है। देन वी हैव W3 विच इज सुग्रीवा। ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव में लेते हैं। दिस डायरेक्शन इज ऑस्पिशियस एंड गिव्स मनी, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। W4 पुष्पदंत, दिस इज ये डायरेक्शन होती है तो उस घर में हमने ये देखा है कि मोस्टली मेल चाइल्ड होता है। दिस एंट्रेंस मेक्स रेजिडेंट्स हैप्पी इन देयर लाइव्स। So this is also a positive entrance. Then we have W5, which is Varuna. This gives increase of wealth, sons, and strength. This entrance gives over-ambitious attitude. People having W5 entrance demand much higher value of their product and service without focusing on their quality. सो इस वजह से इनका जितना भी एफर्ट है या जो भी ये काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं बट वो कभी भी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते उसको कैश में या वेल्थ में। सो ये एंट्रेंस पॉजिटिविटी में नहीं एडवाइस की जाती। देन वी हैव W6 विच इज़ असुरा। विद दिस एंट्रेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ इनहेबिटेंट्स विल नॉट गेट फुलफिल्ड। जितना भी वो एफर्ट करते हैं, जो वो चाहते हैं हमें रिजल्ट मिले, वो इस एंट्रेंस की वजह से उनको नहीं मिल पाता। सो ये एंट्रेंस भी हम नेगेटिव में लेते हैं। देन वी हैव W7 विच इज शेषा, दैट इज लाइक फियर फ्रॉम किंग्स। दिस एंट्रेंस मेक्स inhabitants unhappy and chances of getting addicted to drugs. So this is also negative entrance. Then we have W8 which is papyakshma. ये डिनोट करती है लॉस ऑफ वेल्थ एंड डिसीज। दिस एंट्रेंस मेक्स द इनहेबिटेंट सेल्फिश। सो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव एंट्रेंस। इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, जिसमें N1 में आता है रोग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि डिजीज के बारे में है इसके एट्रीब्यूट्स। सो दिस इज अ नेगेटिव एंट्रेंस एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ समटाइम्स मर्डर ऑफ इट्स रेजिडेंट्स. It also increase unnecessary fears in the mind of residents. So this is also we can't consider. N2 is Naga, which is increase of enemies. This is also a negative entrance which makes residents jealous from one another. External people also hold grudge.
फॉर पीपल रेजिडिंग इन दिस हाउस। इस एंट्रेंस में रहने वाले लोगों में देखा गया है कि आपस में ही अपने घर में उन लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। सो इस वजह से भी ये एंट्रेंस नहीं मानी जाती। देन वी हैव N3 विच इज मुखिया। ये एंट्रेंस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस हम इसको कहते हैं, क्योंकि अ, जो लॉर्ड विश्वकर्मा है, जो सारा वास्तु का जो मेन लॉर्ड है, उनको इसका मेन जो है हेड कहा गया है इस डायरेक्शन का। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव एंट्रेंस। गेन ऑफ वेल्थ एंड सन्स, इट गिव्स abundance ऑफ मनी टू its residents. More male children are born in home having this entrance. Then we have N4, which is called Bhallad. This is also a positive entrance, which is possession of virtues. This is positive entrance and give abundance of inherited property. Then we have N5, which is Soma, acquisition of son and wealth. This entrance is neither positive nor negative, as it gives a religious bent of mind to its residents. So हम ये एंट्रेंस रख सकते हैं अगर हमारी ये एंट्रेंस आती है माइनर रेमेडीज के साथ। देन वी हैव N6 विच इज भुजंग। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव एंट्रेंस। पीपल लिविंग इन होम having this entrance are filled excessive anxiety and have rude behavior। जैसा कि सॉरी N6 में देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अराउंड आती है ये, तो सॉरी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अराउंड आती है। तो वहाँ पे जो है हमारी हेल्थ, माइंड, इन सब का ज़्यादा देखा जाता है। तो इस वजह से ये एंट्रेंस जो है माइंड को ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो ये एंट्रेंस हम पॉजिटिविटी में नहीं लेते। देन वी हैव N7 विच इज़ अदिति, which denote traditional loss of character result for women. This is negative entrance for girls as they defy their family traditions. Then we have N8, which is Diti, which denotes loss of wealth. This is positive entrance for organizations and company dealing with banks as it gives higher bank balance to the inhabitant of particular building. सो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई है उसके लिए तो ठीक है, बट रेजिडेंस के लिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो ऐसा बहुत मुश्किल है सबके लिए कि हम जो अभी एंट्रेंस पढ़ रहे हैं हमें परफेक्ट वही एंट्रेंस मिले जिसका हमने यहाँ पे अभी डिटेल में पढ़ा है। लेकिन हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं भी अगर है तो हम कोशिश करके जो भी हमें एंट्रेंस इजीली अवेलेबल मिल रही है हम उसको कंसीडर करके रेमेडियल करके हम उसको ले सकते हैं। सो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू गेट अ हाउस as per their choice of entrance. Also, only a few have the choice of acquiring a good entrance by renovating their building. But this is also not the case with everyone. Some might not get a good entrance even after having the possibility of renovation, and people living in rental accommodation are not able to do so. In such scenario, we have the option of balancing existing entrance. So these are the positions of all the entrance. Start from northeast to southeast, then southwest towards northwest, and then north. So here the green one denotes the positive and best directions in each zone. That is N3, N4, N5 in north, E3 and E4 in east, S3 and S4 in south, and W3 and W4 in west. These directions are very good for everyone. So now come to our another topic, that is Astrovastu. So what is Astrovastu? Astrovastu is an integrative interpretive approach in which the birth chart is used to identify significant life themes, while Vastu analysis is used to investigate whether corresponding spatial conditions exist in the person environment. किसी भी घर का वास्तु अगर हम देखते हैं तो जनरल रेमेडीज अगर हम देखें या जनरल प्रॉब्लम्स देखें वो तो हम ठीक कर सकते हैं, बट एक घर में ज़रूरी नहीं एक ही अ, इंसान रहता हो। एक घर में कई लोग रहते हैं, 4 लोग, 5 लोग, कहीं 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 जगह 10-10 लोग भी रहते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु हमारे यहाँ काम करता है कि कौन सी डायरेक्शन
किसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे, किसके बर्थ चार्ट पे ज़्यादा फिट बैठ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम्स आउट ऑफ, पहले प्रॉब्लम चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बर्थ चार्ट और वास्तु से दोनों को कंबाइन करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु। वास्तु में हम लोग देखते हैं, पहले फ्लोर प्लान देखते हैं, उसका डायरेक्शन देखते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफेक्ट है, उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसकी रेमेडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी घर में अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम चेक करेंगे और उसको जो भी उसकी रेमेडी है उसको रिकमेंड करके उसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, हम पहले पर्टिकुलर नेटिव से बात करते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका बर्थ चार्ट लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम किस डायरेक्शन से, किस भाव से रिलेट कर रही है, वहाँ पे हम देख के उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद उसको सोल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो उसका हम सेकेंड हाउस चेक करेंगे, 11 हाउस चेक करेंगे और उसके लॉर्ड्स देखेंगे। देन उसका जो भी प्रॉपर्टी में पार्ट होगा, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी, जिस डायरेक्शन में होगी, उसको चेक करके वहाँ पे उसको प्रॉपर रेमेडी सजेस्ट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु, वास्तु का हमने पढ़ लिया, लेकिन एस्ट्रो के अंदर जो आता है वो सारी एस्ट्रोलॉजी आती है। So, astrology is nothing but a study of how the position of planets at the moment of your birth shape your personality, life event and circumstances. एस्ट्रोलॉजी के अंदर बेसिकली 12 राशियां, 12 भाव और 9 प्लैनेट होते हैं। इसके बाद हम आएंगे कि बर्थ चार्ट किस तरह से होता है। नॉर्मली बर्थ चार्ट इस तरह से देखा जाता है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज हम देखते हैं, और इसमें जहाँ पे भी ASC या लगना लिखा होता है वो हमारा फर्स्ट हाउस होता है। So Lagna, which is also called ascendant, the rising sun at your exact birth time, the chart foundation light, the main door is to a house. Then हम मून साइन देखते हैं, which the zodiac sign your moon sign was in which governs your mind and emotion. इसके बाद हम प्लैनेट्स देखते हैं कि वो कौन कौन से घर में बैठे हुए हैं और उनकी क्या एनर्जी है। इसके बाद हम 12 के 12 हाउसेस को देखते हैं कि कौन से हाउस की क्या एनर्जी है, कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्या एफ्लिक्ट कर रहा है, क्या उसके अंदर कोई मेलेफिक है या बेनिफिक है। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं फॉर सपोर्ट कि भाई इसकी दशा क्या चल रही है, कौन से प्लैनेट की चल रही है, वो प्लैनेट इसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। सो पहले हम पढ़ते हैं 9 प्लैनेट्स के बारे में। मेन 9 प्लैनेट्स हमारे होते हैं सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। सन डिनोट करता है हमारी सोल को, जिसे हम आत्मकार का भी कहते हैं, हमारे फादर को। सन के द्वारा ही हमें अथॉरिटी मिलती है, वाइटैलिटी मिलती है। इसके बाद आता है मून। मून हमारे माइंड को डिनोट करता है, हमारी मदर को डिनोट करता है, हमारे इमोशन को डिनोट करता है, हमारे कंफर्ट लेवल को बताता है। इसके बाद हम चलते हैं मार्स पे। मार्स हमारी एनर्जी को, हमारे करेज को, हमारे सिबलिंग्स, हमारी प्रॉपर्टी, इन सब को डिनोट करता है। इसके बाद आता है मरकरी, जो हमारे कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, स्पीच, बिजनेस, स्टडी, इन सब को डिनोट करता है। इसके बाद हम चलते हैं जुपिटर पे, जो हमारा विजडम, वेल्थ, चिल्ड्रन, ग्रोथ और ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी पर्सनैलिटी को, पूरी बॉडी को डिनोट करता है, और पूरी चार्ट को एक तरह से हेल्प करता है। इसके बाद हम चलते हैं वीनस पे। वीनस हमें डिनोट करता है लव के लिए, लग्जरी के लिए, ब्यूटी के लिए और मैरिज के लिए। इसके बाद सैटर्न, जो डिनोट करता है डिसिप्लिन के लिए, हार्ड वर्क के लिए, प्रोफेशन के लिए, और किसी भी काम के लिए अगर किसी तरह की देरी हो रही है, रुकावट हो रही है, तो वो भी हम सैटर्न से देखते हैं। इसके बाद राहु आता है, जो हमारा एम्बिशन, ऑब्सेशन और इल्यूजन बताता है। देन वी हैव केतु, जो डिनोट करता है डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और पास कर्मा से। इसके बाद हम आते हैं बेनिफिक प्लैनेट और मेलेफिक प्लैनेट, यानी कि कौन से प्लैनेट हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से प्लैनेट जो हमें गुड रिजल्ट नहीं देंगे। मोस्टली अगर नेचुरल बेनिफिट में हम देखें तो सॉफ्ट होते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और एनर्जी हार्मोनाइज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है जुपिटर।
जो ग्रोथ के लिए, विजडम के लिए, हमारे लक के लिए और हमारे एक्सपेंशन के लिए काम करता है। इसके बाद आता है वीनस, जो हमारी हार्मनी, लव, कंफर्ट और ब्यूटी के लिए काम करता है। इसके बाद आता है मरकरी, जो एक तरह से बैलेंस रहता है। सॉरी। इसके बाद आता है मून, जो अगर वैक्सीन जो ब्राइट लाइट रहेगा, स्ट्रांग रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिक रहता है, अदरवाइज थोड़ा सा कम रिजल्ट देता है। सो दीज रूल द सॉफ्ट डायरेक्शन दैट इज, अगर हम वास्तु से कंसीडर करें तो ये नॉर्थ ईस्ट हमारा जुपिटर है, साउथ ईस्ट वीनस डिनोट करता है, नॉर्थ में आता है मरकरी। सो अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो इस एरिया को जितना हम ओपन रखें, क्लीन रखें, तो हमारे लिए इनके जो प्लैनेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेचुरल मेलेफिक, जो कि हमें टेस्ट करने के लिए आते हैं, हमें डिसिप्लिन करने के लिए आते हैं और हमें फोर्स करते हैं कि आपको ये काम करना है। जैसे कि सैटर्न, सैटर्न हमें डिसिप्लिन करता है। हमारी रुकावटें जो आती हैं वो सैटर्न से आती हैं, वो दिखाता है। हमारे कर्मास जो हैं वो दिखाता है, हमारी रिस्ट्रिक्शन देता है। मार्स हमें एनर्जी देता है, एग्रेशन देता है किसी भी काम करने के लिए, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, एक्सीडेंट्स को दिखाता है। राहु ऑब्सेशन को दिखाता है, इल्यूजन को दिखाता है। हमारे माइंड में कई बार किसी तरह अलग तरह की एक तरह से इमेज बनती है, वो राहु दिखाता है। और सडन चेंज जो भी हमारे लाइफ में होता है वो राहु से हम देखते हैं। इसके बाद आता है केतु, जो हमें कई चीज़ों से डिटैच करता है, आइसोलेशन में डालता है, कंफ्यूजन करता है, बट रिसर्च के लिए भी हमारा केतु ही हेल्प करता है। देन सन आता है। सन को हम माइल्ड मेलेफिक में लेते हैं, क्योंकि अगर सन ज़्यादा हीट में होगा तो वो हमें ईगो देगा, हमें अथॉरिटी में प्रॉब्लम करेगा, हमें ज़्यादा एग्रेसिव करेगा, हम किसी की सुनेंगे नहीं, तो वो हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट करेगा। ये प्लैनेट जो है एक तरह से वास्तु में हैवी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। जैसे मार्स जो है साउथ को करता है, सैटर्न वेस्ट को करता है, राहु साउथ वेस्ट को करता है। सो प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड कहाँ होते हैं और डेबिलिटेड कहाँ होते हैं? एग्जॉल्टेड मीन्स कहाँ पे वो अपने टॉप पोजीशन पे होते हैं, और डेबिलिटेड मीन कहाँ वो अपने लो पोजीशन में होते हैं, जहाँ उनकी एनर्जी का थोड़ी कम रहती है। अगर हम सन को लेके चलें तो एरीज में सन स्ट्रांग होता है और लिब्रा में वीक होता है। मून को लेके चले तो टॉरस में मून स्ट्रांग होता है, स्कॉर्पियो में वीक होता है। मार्स कैप्रिकॉन में स्ट्रांग होता है एंड कैंसर में वीक होता है। मरकरी वर्गो में स्ट्रांग रहेगा और पाइसेस में वीक होता है। जुपिटर कैंसर में स्ट्रांग होता है और कैप्रिकॉन में वीक होता है। वीनस पाइसेस में स्ट्रांग होता है और वर्गो में वीक होता है। सैटर्न लिब्रा में स्ट्रांग होता है और एरीज में वीक होता है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अ debilitated planet in someone's chart is one of the clearest signal that its ruling direction may need वास्तु सपोर्ट। अगर उस फॉर एग्जांपल मेरे चार्ट में या किसी भी नेटिव के चार्ट में सन डेबिलिटेड है या किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ है, तो उसके घर में अगर ईस्ट डायरेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो दोनों तरफ से उसको सन की कोई भी जो है एट्रीब्यूट्स या पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 12 राशियों पे, जो कि आती हैं। फर्स्ट इज एरीज, देन टॉरस, देन जेमिनी, देन कैंसर, देन लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, देन पाइसिस। अगर हम इनके एनर्जी की बात करें या इनके बिहेवियर की बात करें, तो एरीज का जो बिहेवियर है वो फायरी एलिमेंट की तरह होता है। टॉरस का जो बिहेवियर है जो वो अर्थ एलिमेंट की तरह आएगा। जो जेमिनी का है वो एयर एलिमेंट की तरह आएगा, और जो कैंसर का है वो वाटरी एलिमेंट की तरह आएगा। इसी तरह से लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो में सेम फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर और वाटर एलिमेंट डिनोट करेगा। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस में सेम फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर डिनोट करेगा। इसके बाद हम आते हैं 12 हाउसेस, जिसे हम भाव भी कहते हैं, जिससे हम नेटिव के बारे में जानते हैं कि पर्टिकुलर हाउस या पर्टिकुलर भाव किसी नेटिव के बारे में क्या बताता है।
जैसा कि हमने देखा था कि हम एक चार्ट को एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, और जहाँ पे असेंडेंट ए एस सी या लगना लिखा होता है वो हमारा फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट हाउस से हम नेटिव के सेल्फ, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसको हम देखते हैं। सेकंड हाउस से नेटिव की फैमिली, उसकी वेल्थ, उसकी स्पीच देखी जाती है। थर्ड हाउस से नेटिव का करेज, उसके सिबलिंग्स, उसके एफर्ट्स और उसका शॉर्ट ट्रेवल देखा जाता है। फोर्थ हाउस से उसका डोमेस्टिक कंफर्ट, उसका होम, उसके मदर, उसकी प्रॉपर्टी, ये देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअलिटी देखी जाती है। सिक्स्थ हाउस से हेल्थ, डेब्ट्स एंड एनिमीज। सेवन्थ हाउस से मैरिज देखी जाती है, पार्टनरशिप देखी जाती है। एट्थ हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन और लॉन्गेविटी। नाइन्थ हाउस से लक, धर्मा और हायर एजुकेशन देखी जाती है। टेंथ हाउस से नेटिव का करियर, नेटिव का स्टेटस, उसका कर्मा, उसका प्रोफेशन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो देखा जाता है। इलेवेंथ हाउस से हम उसका गेन्स देखते हैं, इनकम देखते हैं, फ्रेंड सर्कल देखते हैं, सोशल सर्कल देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं। और ट्वेल्थ हाउस से हम नेटिव के जो भी किसी तरह का लॉस है, या फॉरेन ट्रैवल है, स्पिरिचुअलिटी है, या मोक्षा उसका क्या है, वो देखा जाता है। सो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा एस्ट्रो वास्तु क्या है, अब हम देखेंगे कि उसको बर्थ चार्ट के साथ हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली चेक करेंगे, जैसे बर्थ चार्ट जैसा भी हमने देखा था कि उसमें कोई भी प्लैनेट कोई वीक है, डेबिलिटेड है या एफ्लिक्टेड है। इसके बाद उस प्लैनेट की डायरेक्शन हम फ्लोर मैप में उसके हाउस में देखेंगे। उन दोनों को कंबाइन करके हम जो भी उसके रेमेडी उसके लिए काम करेगी वो सजेस्ट करेंगे। सो वास्तु शेप द फिजिकल एनवायरनमेंट, astrology reveals which planet in your chart needs support. So Astro Vastu uses the home itself as a remedy tool for your unique chart. सो अगर हम देखें तो आठ डायरेक्शन, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, वो इस तरह से आठ डायरेक्शन और उनके जो रूनिक प्लेनेट है वो ये हैं। जैसा कि नॉर्थ के लिए मरकरी आता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए जुपिटर, ईस्ट के लिए सन, साउथ ईस्ट के लिए वीनस, साउथ के लिए मार्स, साउथ वेस्ट के लिए राहु, वेस्ट के लिए सैटर्न एंड नॉर्थ वेस्ट के लिए मून। सो अगर किसी भी चार्ट में इन प्लैनेट्स में फॉर एग्जांपल मरकरी में प्रॉब्लम होगी, तो हम उसके वास्तु में या उसके होम प्लान में नॉर्थ डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उसका मरकरी एनहेंस हो सके और उसको पॉजिटिव इफेक्ट मिले। सो अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो सन की डायरेक्शन ईस्ट आती है, उसका जो कलर हमने रिकमेंड अगर हम कर सकते हैं तो वो रेड या ऑरेंज है। और इस डायरेक्शन से हम, जैसा कि सन डिनोट करता है, तो कॉन्फिडेंस देखा जाता है, हेल्थ देखी जाती है और फादर देखे, नेटिव के फादर के बारे में देखा जाता है। मून, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिनोट करता है, इसका कलर वाइट है, जो माइंड, पीस और मदर को रिप्रेजेंट करता है। देन अगेन मार्स, विच इज फॉर साउथ, रेड कलर, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, करेज एंड प्रॉपर्टी। मरकरी, डायरेक्शन इज नॉर्थ, कलर इज ग्रीन, रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन। जुपिटर, डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, कलर इज येलो एंड रिप्रेजेंट विजडम, वेल्थ, ग्रोथ, एक्सपेंशन। वीनस, डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, कलर पिंक और वाइट भी हम ले सकते हैं, लव, कंफर्ट, लग्जरी, और इस डायरेक्शन में हम कैश फ्लो भी देखा जाता है। सैटर्न की बात करें तो वेस्ट डायरेक्शन, ब्लू कलर या ब्लैक कलर भी हम ले सकते हैं, सॉरी, एंड इट रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, करियर एंड स्टेबिलिटी। राहु, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ग्रेइश कलर, एम्बिशन, वर्ल्डली डिजायर्स। केतु, जनरली हम जुपिटर के साथ लेते हैं, बट सेंटर से जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम इसको कंसिडर करते हैं इस डायरेक्शन को। इसमें हम मल्टी कलर ले सकते हैं, बट वी ट्राई टू टेक कलर ऑफ जुपिटर। इट इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, रिसर्च, सॉरी,
If you want to have some water, you can have it, Kamal. Not a problem. या थैंक यू मैम. So, in the meantime, let me remind everyone that today we are starting the Shetbala course, and the session starts by 6 p.m. And I think, sir, we only have, so that is in the Telugu language. Anyone, whoever are interested in joining the Shetbala course can join today in the evening. Yeah, Kamal, are you fine now? या मैम, थैंक यू. Okay, continue. सो जैसा कि अभी हमने पढ़ा इसमें कि भाई हम एस्ट्रो वास्तु का इशू कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, कि एक बर्थ चार्ट में हम चेक करेंगे कौन सा प्लेनेट डेबिलिटेड है, कंबस्ट है, या मेलेफिक के साथ है, या फिर वीक हाउसेस जैसे 6, 8 या 12th हाउस में है. इसके बाद उसका जो भी रूलिंग डायरेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर का नॉर्थ ईस्ट है और आपका वीनस का साउथ ईस्ट है, इस तरह से. इसके बाद फ्लोर प्लान में जाके हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, कोई कट है, कोई एंटी एलिमेंट है, एंटी कलर है, या कुछ सपोज अगर नॉर्थ डायरेक्शन है उसे हमें लाइट रखना है तो वहाँ कुछ हैवी स्टोरेज तो नहीं रखा हुआ. इसके बाद हम ये सारी सिचुएशन चेक करने के बाद उसको पर्टिकुलर रेमेडी देंगे जो उसके वास्तु के लिए भी काम आएगी और उसके करियर के लिए भी, या उसके मतलब बर्थ चार्ट के लिए भी काम आएगी. सो केस स्टडी 1, इफ सन इज वीक. अगर किसी के बर्थ चार्ट में सन वीक है तो उसके सिम्टम्स हम ये चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई नेटिव आपके पास आता है, हमारे पास आता है, हमें कहता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा फादर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मुझे हार्ट रिलेटेड कंसर्न आ रहा है, या मुझे अथॉरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, लाइक लो कॉन्फिडेंस, स्टेन्ड रिलेशनशिप विद फादर, वीक वाइटलिटी, आई और हार्ट रिलेटेड कंसर्न्स, डिफिकल्टी गेनिंग रिकग्निशन और अथॉरिटी. सो हमारी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि इस जोन में कहीं कोई ब्लॉकेज, कोई हैवी स्टोरेज, कोई टॉयलेट, स्टेयरकेस, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है. ईस्ट जोन ऑफ होम इज ब्लॉक्ड, हैवी स्टोरेज, टॉयलेट, स्टेयरकेस, और ईस्ट इज डार्क विद लिटल मॉर्निंग सनलाइट और विदाउट एनी विंडो और डोर. सो रिकमेंडेड रेमेडीज विल बी के जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको, वॉल है या कॉर्नर है उसको ओपन, लाइट और क्लटर फ्री रखा जाए. उसको जितना हाईलाइट हो सके वो किया जाए, लाइटिंग उसमें लगाई जाए, सनलाइट पॉसिबल हो तो वहाँ से उसको एंटर होने दिया जाए. अगर हैवी कर्टन है तो वो हटा दी जाए. और सॉरी, कॉपर या ब्रास का सन एक आता है वो ईस्ट में लगा सकते हैं, बट वो जनरल रेमेडी नहीं है, वो चार्ट देखने के बाद हम बता सकते हैं. अदरवाइज जनरल रेमेडी जो है वो यही रहती है कि ईस्ट वॉल को लाइट रखा जाए, क्लटर फ्री रखा जाए, सनलाइट प्रॉपर आए. और ये है कि हम सन को सुबह सूर्य को जल दे सकते हैं, उससे हमारा जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है. और सन के जो हमारे वीक सन के जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव होने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं. देन वी हैव सेकेंड एग्जांपल ऑफ वीक जुपिटर. किसी का जुपिटर अगर वीक है तो चार्ट सिम्टम्स उसके ये रह सकते हैं कि डिले इन मैरिज, डिले इन चाइल्ड बर्थ, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी और विजडम इन डिसीजन, स्ट्रेन गुरु मेंटर रिलेशनशिप, उसके अपने गुरु के साथ, टीचर के साथ, बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले. उसकी ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, कोई कट रहेगा, कोई ब्लॉक्ड रहेगा. आजकल हम मोस्टली देखा जाता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन आता ही आता है, लोग स्टोरेज बना लेते हैं. तो मोस्ट सेंसिटिव कॉर्नर होने की वजह से अगर यहाँ कुछ भी हैवी आइटम रहेगी या कोई ब्लॉकेज या कट रहेगा तो ये इश्यूज आएंगे. सो इसके लिए रेमेडीज हम ये दे सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को जितना साफ सुथरा रखा जाए, जितना क्लीन रखा जाए उतना वहाँ के लिए बेटर है. किसी तरह का किचन फर्नीचर उस एरिया में या टॉयलेट नहीं होना चाहिए. इस बेटर है अगर कोई पूजा रूम या टेम्पल हम वहाँ बना सकते हैं, कोई वाटर एलिमेंट, फ्रेश फ्लावर्स या वाटर फाउंटेन रख सकते हैं.
आजकल डिफ्यूज़र्स आते हैं, डिफ्यूज़र्स रख सकते हैं। तो ये चीज़ें रखने से उसका जुपिटर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और उसको पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, जो उसके लिए बेटर रहेगा। देन एग्जाम्पल 3, किसी का अगर वीनस वीक है चार्ट के अंदर, तो हम उसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखेंगे। सिम्टम्स लिए लेके आता है कि किसी की शादी नहीं हो पा रही है, या फ्रिक्शन और लैक ऑफ हार्मनी इन रिलेशनशिप, रिड्यूस सेंस ऑफ कंफर्ट और लग्जरी, या किसी को स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या कैश फ्लो से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखेंगे। कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, अगर जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, एक फायर जोन है, तो वहाँ कहीं कोई एंटी एंटी एलिमेंट, जैसे कोई अगर हम किचन बनाते हैं जो कि साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट मानी जाती है, लेकिन कई बार हम प्रॉपर साउथ ईस्ट में हम अपने सिंक रख लेते हैं कि किचन हमने बना ली, कोई बात नहीं, लेकिन वो एंटी एलिमेंट हो जाता है जो हमें एडवर्स इफेक्ट देता है, प्रॉपर हमें इफेक्ट नहीं देता। कई बार हम दे ये ध्यान नहीं देते कि किचन के नीचे, प्लेटफॉर्म के नीचे हम एक डस्टबिन रख देते हैं कवर करके, कि हमने किचन साउथ ईस्ट में बना ली है, तो हमें ये प्रॉपर जो है पॉजिटिव इफेक्ट देगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो डस्टबिन हम रख रहे हैं वो भी नेगेटिव है, उसका वो एरिया नहीं है। सो हमें ये भी देखना है कि वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट या एंटी कलर ना हो। और जो रेमेडीज हम उसको ये बता सकते हैं कि उसको जितना हो सके ब्राइट करके रखें, डेकोरेटिव करके रखें, किसी तरह का वाटर स्टोरेज टैंक ना हो वहाँ पे, कोई वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, इस टाइप की कोई आइटम ना हो। वाइट और पिंक कलर के हम वहाँ कर्टन हो गए, फ्लावर्स हो गए, कुशंस, इस टाइप की चीज़ें रख सकते हैं, पिंक वॉल कर सकते हैं, जैसा कि किचन वहाँ के लिए सबसे बेस्ट है। और डेली इवनिंग के टाइम पे हम एक दिया वहाँ पे जला सकते हैं, जो फायर एलिमेंट को डिनोट करता है और वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव करता है। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ एग्जांपल पे। सपोज किसी का सैटर्न वीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रोफेशन में इश्यूज आएंगे। चार सिम्टम्स रहेंगे: कैरियर स्टैग्नेशन, कैरियर उसका आगे नहीं बढ़ेगा; क्रॉनिक डिलेज; फीलिंग अनसपोर्टेड बाय स्ट्रक्चर्स और अथॉरिटीज; और उसके हेल्थ इश्यूज रहेंगे, स्पेशली बोन से रिलेटेड। अगर उसकी हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन सबसे पहले देखेंगे कि वेस्ट जोन में कहीं कट, कोई वीक, कोई एम्प्टी स्पेस, कोई खाली जगह तो नहीं पड़ी हुई, क्योंकि जैसा कि हमने भी पीछे पढ़ा था, ये जोन जो है हैवी जोन होते हैं, हमें इनको हैवी रखना पड़ता है। अगर यहाँ सपोज हमने नॉर्थ ईस्ट हैवी करके यहाँ लाइट कर दिया, तो ये हमें एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इसकी रेमेडीज हम ये दे सकते हैं कि इसको, वेस्ट जोन को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, कोई भी यहाँ ऐसी चीज़ ना रखी जाए जो हम रखने के बाद भूल गए, दोबारा उसको उठाया नहीं। डार्क ब्लू या ब्लैक कलर थोड़े बहुत मिक्स के हिसाब से हम इसमें कर सकते हैं। हैवी आयरन या मेटल ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। किसी की तरह का अगर कोई स्ट्रक्चरल क्रैक है तो उसको हम रिपेयर सबसे पहले करवाएंगे। और डिसिप्लिन, सैटर्न जो है डिसिप्लिन के लिए माना जाता है। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे नेटिव जो है डिसिप्लिन होना स्टार्ट करे, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो या 10 मिनट के लिए हो। धीरे धीरे वो ये टाइम बढ़ाएगा तो उसका सैटर्न पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल फिफ्थ, जो राहु से रिलेटेड है, जिसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। राहु के अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो उसके चार्ट में उसको ये लाइफ में आ रहा होगा कि सडन लॉसेस होंगे, कंफ्यूजन रहेगी डिसीजन में, एंजाइटी रहेगी, फैमिली डिस्प्यूट, इंस्टेबिलिटी इन कैरियर एंड रिलेशनशिप, एंड फीलिंग अनग्राउंडेड। सो जैसे कि हमने देखा साउथ वेस्ट उसका डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट देखा जाए तो हमारे वास्तु जोन में एक मेजर रोल उसका है कि उसको हमें साउथ वेस्ट को स्टेबल रखना है, हैवी रखना है। किसी तरह का जो है बोरवेल वहाँ नहीं होना चाहिए, अंडर वाटर जो है वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ से लो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी वहाँ पे है तो उसको सबसे पहले इस चीज़ को ठीक किया जाएगा। बाकी जो रेमेडीज हैं कि साउथ वेस्ट को हैवी करना है, वहाँ पे मास्टर बेडरूम रहे तो सबसे बेस्ट है। किसी तरह का वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और कीप दिस जोन विजुअली सॉलिड, काम एंड क्लटर फ्री। सो बेसिक अगर हम देखें वास्तु, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिस्टल्स, यंत्रास, कलर थेरेपीज, प्लांट्स, मिरर्स,
देन साल्ट वाटर बाउल, देन विंड चाइम्स एंड कॉपर वेसल्स। ये हर तरह के बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कौन से नेटिव को किस डायरेक्शन के लिए किस तरह की रेमेडी देनी है। कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ के लिए उसको क्रिस्टल रिकमेंड करना है, या यंत्रा देना है, या कलर चेंज करवाना है, या कोई प्लांट बताना है, मिरर लगवाने हैं, विंड चाइम्स लगवानी है, या कोई सॉल्ट वाटर की आइटम रखनी है, या इस तरह से। सो ये सब डिपेंड करता है कि चार्ट में किस तरह का हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। सो कॉमन मिस्टेक जो हमें इसमें अवॉइड करनी होती है वो ये है कि अगर हम किसी नेटिव का चार्ट देख रहे हैं तो हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक बार में एक प्रॉब्लम पे फोकस करना है। ये नहीं कि हमें हर डायरेक्शन देके सारी डायरेक्शन को ठीक करवा दिया। उससे क्या होगा कि वो जो रिजल्ट उसको आना चाहिए वो रिजल्ट तो आएगा, लेकिन बाकी चीज़ों के रिजल्ट भी एडवर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रोफेशनल को अगर किसी नेटिव्स ने कंसल्ट किया है तो उसकी एडवाइस को प्रॉपर तरीके से मानना, किसी को भी अननेसेसरी जेमस्टोन एडवाइस करना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। और सबसे मेन बात, वास्तु से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी रेमेडीज होती हैं, इनका इंस्टेंट रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है, उसमें टाइम लगता ही लगता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने रेमेडी दी तो कल रिजल्ट आ जाएगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक वास्तु का हम लॉ लेके चलते हैं, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बन गया तो चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ हमें लेके चलनी है। और सिर्फ एक ही क्लू लेके हम डायग्नोस नहीं कर सकते कि हमने चार्ट में देख लिया कि इसका प्लेनेट वीक है तो हाँ ठीक है जी, हम इसके जो है इसकी रेमेडी कर दो। हमें उसके साथ साथ उसका वास्तु भी देखना पड़ेगा, उसकी दशा भी देखनी पड़ेगी, और बाकी प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे, उसको अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो एस्ट्रो वास्तु का कंक्लूजन अगर हम देखें तो ये आता है कि एवरी प्लैनेट इन योर कुंडली रूल्स और डायरेक्शन इन योर हाउस। जैसे कि हमने अभी देखा, वीक और एफ्लिक्टेड प्लैनेट जो होगा वो इशू उसी अपने जोन में दिखाएगा ही दिखाएगा। उस जोन को हम एलिमेंट, उसके एलिमेंट से, जो भी उसका प्रॉपर एलिमेंट है या कलर है या उसका कोई डेकोरेटिव आइटम डाल के हम सपोर्ट कर सकते हैं। और एस्ट्रो वास्तु जो पर्सनलाइज करता है वो उसी उसका मेन कंसेप्ट ये है कि एक ही घर में जितने लोग हैं उनके हिसाब से सबको अलग अलग रेमेडी देना, ताकि सबको जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिले और उसके जो बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। आगे हम बात करेंगे जनरल प्रॉब्लम्स जो विदाउट, अगर हम बर्थ चार्ट देखें तो किसी के घर में नॉर्मल देखा जाए आती है, तो उनके लिए हम क्या रेमेडी दे सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन हमारी अपॉर्चुनिटीज की होती है, करियर की होती है, फ्लो की होती है, रिसोर्सेज की होती है। अगर यहाँ पे किसी तरह का क्लटर है, ब्लॉकेज है, डार्कनेस है, हैवी स्टोरेज है, तो उसकी सबसे पहली जो रेमेडी वो यही होती है कि क्लटर हटाया जाए, हैवी स्टोरेज हटाई जाए। उसको जितना हम ब्राइट रखेंगे, क्लियर रखेंगे, उतना वो हमारे लिए बेनिफिट देगा। इसके बाद हम आते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, जो हमारा हेल्थ भी डिनोट करता है, नॉलेज देता है, क्लैरिटी देता है, ट्रांजिशन देता है। किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सेसिव वेट, या कोई फर्नीचर, हैवी फर्नीचर हमने यहाँ बना दिया, रख दिया, या कोई स्टोर रूम बना दिया, तो भी हमें वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। सो इसको भी हमें ओपन, क्लीन और लाइट रखना है, किसी तरह का कोई भी हैवी स्पेस नहीं रखना। सॉरी। इसके बाद आते हैं हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो हमारी क्लैरिटी के लिए, लर्निंग के लिए, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, पूजा के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। यहाँ पे अक्सर देखा गया है, जो आजकल भी हम देखते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज़्यादा टॉयलेट की, स्टोरेज की और किचन की। अदरवाइज लोग अपना जो है यहाँ पे स्टोर रूम भी बना लेते हैं, तो वो अगर है, सबसे पहले हमें वो हटाना पड़ेगा, उसकी कोई रेमेडी नहीं है, उसको हमें क्लीन रखना ही पड़ेगा। जितना हम लाइट रखेंगे उतना हमें उस चीज़ की पॉजिटिविटी आएगी। इसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारी ग्रोथ को डिनोट करती है, एक्टिविटी और कम्युनिकेशन को बताती है। किसी तरह का ब्लॉकेज, डार्कनेस और अनयूज स्पेस अगर रहेगा तो वो हमें ये दिक्कत ग्रोथ में देगा, कम्युनिकेशन में देगा, हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे, हम
सालों साल मेहनत करते रहेंगे पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी हमारी। सो यहाँ पे भी हमें लाइट इम्प्रूवमेंट रहेगी। अ, अगर यहाँ डार्कनेस है तो उसको हम लाइट में रखेंगे, डार्क अगर पेंट है तो लाइट पेंट करेंगे। इसके बाद ईस्ट डायरेक्शन, ये यहाँ से हम सनराइज वाइटैलिटी और हमारी बिगनिंग, हमारी जो है जो अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ से भी देखी जाती हैं। किसी भी तरह की ब्लॉक्ड होगी, ब्लॉक्ड अगर ओपनिंग होगी, अगर एंट्रेंस है उसको ब्लॉक कर रखा है, विंडो है वो ब्लॉक कर रखी है, डार्कनेस है या डार्क कर्टन है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, वो सब अगर होगा तो हमें किसी तरह का अपॉर्चुनिटीज आने में इसमें प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे भी जितना ओपन रहेगा, लाइट रहेगा, उतना हमारे लिए बेटर है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो N0 से लेके 0 डिग्री से लेके ईस्ट 90 डिग्री तक जितना हम इस एरिया को क्लीन, लाइट और हल्का रखेंगे, उतना हमारे लिए बेटर है, हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे करियर के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये हमारी एक्टिविटी के लिए और फायर ट्रांजिशन के लिए जानी जाती है। लेकिन एक्सेसिव हीट अगर यहाँ रहेगी या इलेक्ट्रिकल आइटम्स अगर हम लगा देंगे या रख रखी होंगी, तो एंटी एलिमेंट का काम करेंगी, जो हमारी एक्टिविटी में दिक्कत करेगा, हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, काम नहीं करने देगा। सो किसी भी तरह का अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिकल कोई काम करवा रहे हैं तो एक लिमिट में होना चाहिए, ये नहीं कि बिना देखे हमने कुछ भी यहाँ डाल दिया। सेकंड, साउथ ईस्ट, विच इज़ अ फायर जोन, अग्नि जोन जिसको कहते हैं। अगेन एक्टिविटी का जोन है, हमारे कैश फ्लो का जोन है। किसी तरह का वाटर फायर कॉन्फ्लिक्ट अगर यहाँ होगा या अगेन एग्जेसिव हीट होगी, वेंटिलेशन नहीं होगी, तो वो भी हमें एंटी जो है उसके रिजल्ट देगी। सो फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद साउथ साउथ ईस्ट, जो हमारी एनर्जी एक्टिविटी एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है। सेम यहाँ पे भी अगर एग्जेसिव हीट हम रखेंगे, क्लटर रहेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी, बिना देखे कुछ भी डाल दिया, उसके बाद सफाई नहीं रखी, तो ये हमें नुकसान देगा। इसके लिए रेमेडी, जो जनरल रेमेडी यही रहेगी कि जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम हीटिंग एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे और क्लटर फ्री रखेंगे। देन वी हैव साउथ, जो हमारे अगेंस्ट स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम आता है। किसी तरह की अगर यहाँ ज़्यादा ओपनिंग रहेगी या ज़्यादा लाइट रहेगा, तो वो हमारे जो है स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। मेंटेनेंस नहीं रहेगी, अगर वहाँ हमने डस्टबिन रख दिया, मेंटेन नहीं किया, या कुछ स्टोर रूम रख दिया उसको मेंटेन नहीं किया, तो हमारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो उसकी रेमेडी यही है सबसे मेन, कि उसको मेंटेन करके रखें। अगर कोई आपके पास ऐसी आइटम है जो नहीं यूज़ में, उसको वहाँ से हटाएं, ज़बरदस्ती उसको ना रखा जाए। देन वी हैव साउथ साउथ वेस्ट, जो अगेन स्टेबिलिटी और सपोर्ट में काम आती है। यहाँ पे भी अगर हम देखें कि हमने यहाँ बाई चांस ड्राइंग रूम बना दिया या ओपन एरिया रख दिया, तो वो हमें एंटी रिजल्ट देगा, हमें स्टेबिलिटी नहीं देगा किसी तरह की। हम जितना मर्जी स्टेबल होने की कोशिश कर लें, ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। सो सेम हम यहाँ पे भी यही कोशिश करेंगे, जितना हम हैवी रखें इसको, चाहे हैवी फर्नीचर से या हैवी बेडरूम बना सकते हैं, ताकि हमारा स्टेबिलिटी में, सपोर्ट में ये हेल्पफुल रहे। देन वी हैव साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो अगेन स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग की होती है, रिलेशनशिप की भी होती है। तो यहाँ पे भी सेम, अगर एंटी एलिमेंट रहेगा, वाटर रहेगा और खुला रहेगा, लाइट रहेगा, तो वो हमें रिजल्ट नहीं देगा। तो अगेन उसको स्टेबल रखने के लिए उसको वहाँ पे कुछ हैवी फर्नीचर या कुछ हैवी ऐसा रखा जाए जो हम बार बार नहीं वहाँ से हटाएंगे, ताकि हमें वो पॉजिटिव इफेक्ट दे। देन वी हैव वेस्ट साउथ वेस्ट, विच इज ऑल्सो फॉर सपोर्ट, फॉर completion the work, then also for study. सो वहाँ अगर किसी तरह का हमने ऑर्डर से कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ, ऐसे ही फैला रखा है, उसको तरीके से नहीं लगा रखा, ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, तो वो हमें हमारी स्टडीज़ में सबसे पहले दिक्कत करेगा, हमें सपोर्ट आने में दिक्कत आएगी। हम किसी तरह से सपोर्ट लेने किसी के पास भी जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो उसकी जो जनरल रेमेडी वो यही रहेगी कि उसको जितना ऑर्गेनाइज हो सके वो रखें, ऐसे नहीं कि आए और कुछ भी सामान रख दिया इधर उधर। वो ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, जो हमारा जो भी काम है उसको कंप्लीशन की डायरेक्शन वेस्ट मानी जाती है।
जो हमारा प्रॉफिट है, जितना हम काम करते हैं, जो भी सपोज प्रोडक्ट कोई हम बना रहे हैं, बनाने के बेचने के बाद जो प्रॉफिट है वो हमारा वेस्ट डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ भी किसी तरह का अगर वेंटिलेशन नहीं है, क्लटर है और कुछ ज़्यादा ओपनिंग है, लाइट है, तो वो हमें रिजल्ट नहीं देगा। तो इसको हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। देन वी हैव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो हमारा मूवमेंट को दिखाता है, नेटवर्किंग को दिखाता है। सो इसमें अगर हमारी एक्सेसिव मूवमेंट रहेगी या वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रखेंगे हम, कुछ भी किसी भी तरह का, सपोज हमने बेडरूम बनाया, बेडरूम इस डायरेक्शन में अलाउड नहीं है, वो आपको एनजाइटी देगा, डिप्रेशन तक दे सकता है, स्पेशली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। सो वहाँ पे जितना हो सके उसका कंट्रोल सर्कुलेशन का कम रहे उतना बेटर रहेगा। देन वी हैव नॉर्थ वेस्ट, जो अगेन मूवमेंट चेंज रिलेशनशिप के लिए जाना जाता है। सेम यहाँ पे भी अगर ओपनिंग ज़्यादा रहेगी तो वो इंस्टेबिलिटी दिखाएगा। इसको ऑर्गेनाइज और रेगुलेट करके रखेंगे तो हमें इसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। देन अगेन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट विच इज़ फॉर ट्रांजिशन। सो यहाँ पे भी अगर ज़्यादा हमारी एक्टिविटी रहेगी तो हमें जो हम लाइफ में ट्रांजिशन अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगी। सो रिड्यूस अननेसेसरी मूवमेंट हेयर। सो दैट्स ऑल फॉर माय वास्तु शास्त्र session, and thank you everyone. If anyone has a question, he can ask. Yeah, thank you, Kamal. Any questions from the audience? Sir, your feedback on this, please. Yeah, cool. You concluded very well, but you need to conclude your research. What exactly you are going to prove? That you need to give a question and you need to conclude in the thesis. So, as per the public session, it's a very good. You explain the notes very well. Good. Yeah. Thank you, sir. So, any questions from the audience? No? Okay, thank you, everyone. So the next session will be on 24th of August at same time, 4 p.m. by Kirti Diwan. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone.